Students, this is your teacher Rebecca Deal. Welcome back to our knowledge spot. Dear students, today we have to cover this is the book class 8 and chapter number 2, that is algebra, expansion and factorization. So we have to start. First we have to discuss the agenda of the video, that what is the purpose of the video, that we have to discuss about many things, that is number 1 terms, number 2 factorization, number 3 common factors, last but not the least, that is simplification. So without any delay, we are going to start it. Here is the exercise, that is 2.8. Factorize the following. So this is the question, and this is ax minus by plus bx minus ay. First you can see these are the terms. The very first topic of the video, like the agenda, was the terms. So here we have the four terms, 1, 2, 3, 4. Then we have to take the common. Before you have to start this exercise, if you don't have the concept of 2.7, you are unable to understand this exercise. So first you have to learn about 2.7, that I already have mentioned, or I have done the video with that. So you just go through 2.7 and then you have to move towards 2.8. In 2.7, you will learn actually the basics of 2.8 and how to take common and what is factorization actually. So here you can see we have the four terms and you cannot take anything common from the first two terms. So what we will do actually, you have to arrange the terms in a way और इस तरह से कि फिर आप कॉमन ले सकें, या एक वर्ड था एजेंडा में कॉमन या फैक्टराइजेशन. ऑन द होल इस पूरे क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन बोलेंगे. कॉमन क्या है कि अभी हम कॉमन लेने जा रहे हैं इसमें. तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप साथ मिला के लिखेंगे और फिर सेकेंड और फोर्थ टर्म को साथ मिला के लिखेंगे. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट और व्हाई वी आर डूइंग सो? The reason is that because there is no number common in the first two terms, you can see that this is ax and this is by. There is no number common between these two numbers. Now you can see the third and the last term, and once again there is nothing common in these two terms. Now that's why we have to combine the first and the third term and second and the last term. You can see there is a common number between these two terms, that is x. X is common between these two numbers. Here we can take common x and the left number will be a plus b. I'm telling you again that x is common and the left number is a plus b. Right now, which letter is common actually? The y is the same number, or we can say that is common and we have to take it common. So y will be there and the left number will be b plus a. Now why this plus is here? So यहाँ देखिए आपके पास आपको एक माइनस जो साइन है वो नजर आ रहा है. You have to take this common. माइनस अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव आप यहाँ लिखेंगे, नेगेटिव कॉमन, माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस माइनस प्लस. तो देखिए ये हमने कॉमन लिया, जो लेटर कॉमन था लेटर को कॉमन ले लिया, और उसके बाद जो हमारे पास साइन हुआ करेंगे, अगर ये नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव होगा. उसके बाद ज़रा गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं सेम है. और ये देखिए, रिमेंबर दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम द स्टूडेंट्स मे बी दे डोंट नो दैट a plus b and b plus a are same, but actually with the help of property that you have learned so far from the commutative law or the commutative property कि a plus b is equal to b plus a, मीन्स अगर दो नंबर हम उसको उसकी जगह को चेंज कर दें, चाहे 1 plus 2 हो 2 plus 1 हो, दे बोथ विल गिव यू द सेम आंसर. तो ये दोनों बिल्कुल सेम है. अब देखें कि अब इन दोनों में चाहे a plus b हो और b plus एक्चुअली द ब्रैकेट, द होल ब्रैकेट इज सेम. फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया तो इस जो पूरी हमारी जो सेकंड स्टेप आ रहा है यहाँ पर, इसमें ढूंढे सेम चीज़ क्या है. तो यहाँ जो सेम चीज़ है वो आपके पास क्या है, a प्लस बी, जो कि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया. मतलब पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन है. और अब रह क्या जाएगा, x माइनस वाई. तो पहले क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी, और बाद में क्या है, x माइनस वाई. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो ये देखें, हमने सबसे पहले अगर हमारे वीडियो का एजेंडा क्या था, नंबर 1 था हमारे पास टर्म्स थी. तो हमारे पास टर्म्स कितनी थी, 4. उसके बाद हमने इसमें कॉमन भी लिया. इस पूरे प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं. हियर वी हैव टेक द कॉमन नंबर्स, और जो अगर सिंप्लीफिकेशन कोई थोड़ी बहुत होगी तो वही करेंगे, हर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें. सो we are going to move towards the next part, that is the second one. So the question is in front of you.
अब देखें यहाँ पर पहले इन दो टर्म्स को देखें, अगेन वी हैव द फोर टर्म्स। हम देखेंगे कि हम ये स्टेप तब करेंगे जो हमने इंटरचेंज करना है अगर कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ अगर देखें गौर से तो पहले हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली दोनों टर्म्स में से एक नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। अब अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर 2 है। 2 एक ऐसा कॉमन नंबर है जिसको जो 2 2 को भी डिवाइड करेगा और 2 6 को भी डिवाइड करेगा। इसके अलावा अगर हम एक सेम लिटरल ढूंढे, मैंने एक वर्ड अभी बोला है लिटरल्स। हमारे मैथ्स में हमारे जो एक्स वाई जी होता है वो एक वेरिएबल के तौर पर यूज हो रहा होता है, एक्स वाई जी। और हमारे जितने भी अल्फाबेट्स बाकी होते हैं दे आर ट्रीट एज द वर्ड लिटरल्स, LITERALS, दैट इज लिटरल्स। तो हमारा जो इसके अलावा जो लेटर कॉमन आ रहा है वो बी है, बिकॉज दोनों में बी एक कॉमन लेटर है, सेम है। इट मीन्स 2 भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग चीज, क्योंकि 2 भी हम कॉमन ले चुके, तो यहाँ पर एक ए रह जाएगा, नेगेटिव साइन एज इट इज, और 2 3s are 6 और ये सी आ जाएगा। अब जरा गौर से देखें तो यहाँ पर और आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ तो कोई नंबर ही कॉमन नहीं है। कभी ऐसा भी होता है इफ देयर इज नो नंबर कॉमन, तो आप एक नंबर कॉमन ले सकते हैं, दैट इज अ यूनिवर्सल नंबर। यू कैन से इस नंबर को हम इससे वी विल गेट अ मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस नंबर एक्चुअली। तो अगर हम इस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो देखें ये 1 को कॉमन लेने से 1 A's are A और 1 3s are 3। अब नेगेटिव कॉमन लेने तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और फिर देखें ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। मीन्स ये जो भी साइन यहाँ पर हुआ करेगा उसको हम यहाँ पर कॉमन लिया करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस क्या हो गया यहाँ पर, ये माइनस प्लस माइनस। एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है कि इस स्टेप के बाद ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको सेम होना चाहिए। मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू मेक देम लाइक एक जबरदस्ती इसको हम सेम नहीं बना रहे, बट ये सेम आ जाया करेंगे विद द प्रोसीजर यू आर डूइंग। यहाँ पर भी देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी बिल्कुल सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है या हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये हमारी जो ब्रैकेट बिल्कुल सेम आई है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉमन लिया है, और ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन है, इसको हम कॉमन लेंगे। पहले लिखेंगे a माइनस 3c, यहाँ पर रह जाएगा 2b और माइनस 1। मीन्स हमने ये जो ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या रह गया, 2b, और यहाँ रह गया माइनस 1। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। नाउ we'll move towards the third part, that is again we have the four terms. Now what is the common number? अब यहाँ ये थोड़े थोड़े करके सब क्वेश्चंस में slowly gradually you will see the change. Now the first question of course ऐसा तो possible नहीं कि सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो सेम हो, we'll have the some change in all the question. Now we can take common. यहाँ पर देखें तो x की पावर 2 है और you can we call it square, और यहाँ पर x की पावर 1 है। इट मीन्स कोई चीज़ सिमिलर है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी पावर कॉमन लेनी है या क्या करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लीस्ट पावर है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है। तो जो x की पावर लीस्ट पावर हमेशा कॉमन लिया करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसकी हाईएस्ट से भी जितनी भी पावर्स हों, बट यू ऑलवेज हैव टू टेक द लीस्ट पावर कॉमन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। सो व्हाट इज द लीस्ट पावर, दैट इज x पावर 1। आई हैवंट राइट द 1 because when there is no number so it is always considered a positive 1 number। तो यहाँ पर x की पावर 1 कॉमन ले ली, तो देखें यहाँ पर टोटल x कितने हैं, 2 हैं। एक हमने कॉमन ले लिया और एक यहाँ पर रह जाएगा, ये प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ देखें एक x हम कॉमन क्योंकि ले चुके हैं, यहाँ पर एक ही x है जो कि हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया, सिंपल। अब इन दोनों टर्म्स को देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज नो वेरिएबल और द लिटरल इज कॉमन, बट देयर इज ओनली वन नंबर, दैट इज 3 इज कॉमन। Now again you can see the negative sign। अगर यहाँ हमने यहाँ से जैसे इसको अरेंज किया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, यहाँ का ये माइनस नीचे कॉमन आया, इसी तरह से यहाँ का ये माइनस कॉमन आएगा। तो देखें यहाँ से 3 एक ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करे और 6 को भी डिवाइड करे। Now we can say 3 1s are 3 but we haven't mentioned there। यहाँ पर अगर पॉइंटर को देखें, यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये 3 1s are 3, तो 1 नहीं हम मेंशन करते, तो और 3 2s are 6। और गौर से देखें तो अगर नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया तो हम बोलते हैं माइनस माइनस प्लस। एरो को शो करें, चेक करें कि एरो कहाँ जा रहा है, मैं जो बोल रही हूँ मेरा एरो किधर, इसको मैच करें, माइनस माइनस अगेन प्लस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ओके नाउ व्हाट इज कॉमन, अगेन यू कैन सी द ब्रैकेट इज कॉमन और ब्रैकेट इज सेम। तो अब x प्लस 2 अगेन जो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ गया, जो उसको हमने कॉमन पूरी की पूरी ब्रैकेट इज हमने उसको कॉमन ले लिया क्योंकि वो सेम है, और पीछे रह क्या गया आपके पास x माइनस 3। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। नाउ moving towards the next, that is the 4 part। again they are kind of same question। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, जरा पहले खुद सोचें, रादर आई शो यू द सोल्यूशन। तो यहाँ देखिए आपके पास जो पहला नंबर जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ क्या है, 1 है, तो x की पावर 1 जो है कॉमन लेंगे, और देखें यहाँ पर x की पावर 1 कॉमन आ गई। तो यहाँ पर क्योंकि 2 x हैं, एक x कॉमन ले लिया और एक x हमने क्या किया, उसमें से उसको वापस रह गया, वो लिख दिया। अब यहाँ 5 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है,
ठीक है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, माइनस तो कॉमन लेना ही हमने, नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, 2, लाइक 2 1s are 2 और 2 5s are 10। अब ये नेगेटिव नंबर है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। अगेन देखें सेम लाइक दीज क्वेश्चंस, x प्लस 5 इज द कॉमन नंबर, सो x प्लस 5 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या रह जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म्स होती हैं वो हम अलग से यहाँ लिख देते हैं। जब हमने x प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ पर x रह गया और माइनस 2। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज नंबर 5। अगेन वी हैव द 4 टर्म्स, यू कैन सी लाइक द फर्स्ट 2 टर्म्स यू कैन टेक x कॉमन, देयर इज नो नंबर कॉमन, ओनली वेरिएबल इज कॉमन, x कॉमन है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, एक x यहाँ रह गया -7। अब यहाँ से प्लस एज इट इज आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 1s are 2, 2 7s are 14। अब देखें, अब क्या, अब जरा खुद सोचें कि व्हाट इज द कॉमन ब्रैकेट और व्हाट इज द कॉमन नंबर। सो द ब्रैकेट इज एक्चुअली कॉमन, द होल ब्रैकेट विल टेक इट कॉमन, सो दैट्स really x minus 7, x minus 7 is common, and here we have x plus 2, and that is the final step of the question. Moving towards the next part, that is x square plus 3, x square plus 3x minus 4x minus 12। तो अब आप जरा गौर से देखें कि इसमें क्या नंबर जो आपके पास कॉमन आ रहा है, मतलब नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा, मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर चेक करें। सो विच इज द कॉमन नंबर, दैट इज अगेन x इज द कॉमन नंबर। तो x एक कॉमन नंबर है, उसके बाद क्या करेंगे, x कॉमन लेने के बाद, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक x रह गया और प्लस 3। अब यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ पर कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पर x है यहाँ पर नहीं है, तो हम ओनली वी हैव टू टेक ओनली कॉमन 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 1s are 4, 4 3s are 12। अब और सब, अब हम जरा साइन को चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर ये देखें, फिर इस माइनस को देखें, माइनस माइनस प्लस, जस्ट चेक द डायरेक्शन ऑफ द एरो, सी माइनस माइनस प्लस, फिर देखिए वहां पर है माइनस माइनस प्लस। अब देखें क्या चीज कॉमन आ रही है ब्रैकेट में, x प्लस 3 इज कॉमन, सो टेक द x प्लस 3 कॉमन, यू विल हैव x minus 4। नाउ see the next question, that is number 7। now what is common, the 4 terms we have here, we have common, अब से variable change हो गया, and the variable the y is common। now y is common, here you have the, because the 2 y's are here, the one is common, the one will be left, और ये आ जाएगा माइनस वाई, क्योंकि यहाँ भी एक y है, यहाँ से देखिए यहाँ पर टोटल y कितने, 2 हैं, एक आपने कॉमन ले लिया और एक रह गया। अब यहाँ कितने y हैं, एक ही y है और वो y आप कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 9। अब यहाँ देखें 3 कॉमन आ रहा है, 3 1s are 3, 3 9s are 27। और दूसरा क्या करेंगे आप, कि आपने ऐसे करना है कि अब तो पॉजिटिव है, तो अगर देखें तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। प्लस एक ऐसा साइन है जो किसी भी साइन को, अगर मतलब किसी को चेंज नहीं करता, वो ऐसा एक कह लें कि इतना इनोसेंट सा साइन है कि वो देखें अगर पॉजिटिव है तो चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है। रादर अगर हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो देखिए हर चीज़ को वो चेंज कर देता है। नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है दैट विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर, चेंज योर होल द क्राइटेरिया ऑफ द क्वेश्चन। सी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ नाउ द ब्रैकेट इज कॉमन अगेन, सो यू कैन टेक y minus 9 कॉमन, और यहाँ पर क्या होगा, y plus 3। सो अच्छा, समटाइम ऐसा होता है बच्चों को ये बात नहीं, अगर अगर ये इसको हम काउंटर चेकिंग यूँ कर सकते हैं कि अगर आप गौर से देखो तो अगर y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर, फिर y को इस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9y। मतलब अगर इसकी काउंटर चेकिंग मीन्स अगर आप उसको उल्टा सवाल को चेक करना शुरू करें तो यू विल गेट योर क्वेश्चन बैक। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is number 9 part. Again the 4 terms we have. You just rather I show you the first step. आप चेक करें कि यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। Of course this is an x common. X की power 1 is common. Okay. Now x power 1 is common. How many x are here? There are 2x. The 1 is common. The 1 will be left. Now negative sign as it is. Now क्योंकि x हम एक common ले चुके हैं तो यहाँ कोई x नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, खाली 7। Now again the negative sign, तो नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस प्लस माइनस। तो ये देखें 5 1s are 5 और 5 7s are 35। सी द ब्रैकेट्स आर सेम। आप सब क्वेश्चन में चेक कर लें, सारी की सारी जो ब्रैकेट्स हैं वो जो फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल सेम आया करेंगी। तो अब अगर गौर से देखें तो व्हाट इज द कॉमन ब्रैकेट, दैट इज x minus 7। x minus 7 is common and x minus 5। Again moving towards the next part, that is number 10। Again the 4 terms we have। Now the solution, what is common here, the x power 1 is common। तो देखें x की पावर 1 इज कॉमन, 2x है, एक रह जाएगा, -13। नाउ माइनस इज कॉमन, 2 विल बी कॉमन, 2 1s are 2, 2 13s are 26। नाउ माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। अगेन द ब्रैकेट इज सेम, x minus 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x minus 2। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, this is number 11। और अब देखें this is totally a different question when we are compared to this to rest of the question or the previous question। now you can see उसने यहाँ पर उसका पहला स्टेप मिस है
और स्किप है और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो ये तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी व्हाट इज द कॉमन नंबर और व्हाट इज द कॉमन ब्रैकेट. सो वी हैव x माइनस वाई द कॉमन ब्रैकेट. तो चेक करें, बस हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया और यहाँ पर रह गया a माइनस बी. चेक करें डियर स्टूडेंट्स, ये इन सब क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली सवाल को यहाँ से शुरू किया गया. ये चेक करें, इसकी सेकंड ब्रैकेट सेकंड सॉरी जो लाइन है, जो स्टेप है, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है. सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट देखें, number 12. Again you can see the bracket is same or y minus y a is same, so directly you can take it common. This is y minus a and the left number are y minus b. So this is the final answer. Next देखें, this is number 13. Again you can see this is PQ minus RS. The bracket is same, so we'll take it common, PQ minus RS. So here you have A square minus B square. यहाँ some like maybe some student thought okay, we can apply another step because you know the formula A square minus B square. So you can do like A plus B and A minus B. But I suggest you no need to do this. So you can left it here. इसको ऐसे ही छोड़ दें, मतलब इतना ये काफी है. If you want to do it more simplification, आपको पता है एजेंडा में एक वर्ड था simplification. इसका मतलब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो A plus B और A minus B लिख सकते हैं, ठीक है. अदरवाइज दिस इज इनफ. नाउ द नेक्स्ट और द लास्ट वन, अगेन यू कैन सी x plus 7 is the last question. तो जो the common the number that is x plus 7, so you can take it common x plus 7 and the remaining terms will be ab plus cd and there is nothing common again. अब देखें तो अब ब्रैकेट में कोई चीज इसमें से कॉमन नहीं आ रही, इसका मतलब we'll leave it like that, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे. तो ये था एक्चुअली सारा जो क्वेश्चन है, ये दे आर नॉट टू मच डिफिकल्ट. लेकिन इस एक्सरसाइज को जो करने से पहले आपको जो एक्चुअल जो काम करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा. बट वी हैव सम मोर क्वेश्चन, नॉट द लास्ट वन, बिकॉज अभी हमने इसकी एग्जाम्पल्स भी करनी है. तो हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है दैट इज, दो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास. एग्जाम्पल नंबर 15. अब देखें गौर से, दिस इज 3x प्लस सी एक्स प्लस 3c प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर देखें x कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और ये x क्योंकि इन दोनों में से x एक कॉमन आ रहा है तो दिस इज 3 प्लस c और यहाँ पर देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, c कॉमन आ रहा है और 3 प्लस c. बिकॉज अगर गौर से मैं दोबारा बता रही हूँ, देखें यहाँ से एक x कॉमन आ रहा है तो 3 प्लस c, फिर यहाँ से c कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर c की पावर 1 है, यहाँ पर c की पावर 2 है, तो एक c कॉमन ले ले तो ये आएगा 3 प्लस c. नाउ द ब्रैकेट इज सेम, तो हम क्या लिखेंगे 3 प्लस c एंड x प्लस c. अगेन there is another example we have that is number 16. तो चेक करें कि वैसे देखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा कि it's quite difficult question but not as that. चेक करें कि पहली दो ब्रैकेट्स में से या दो टर्म्स जो हैं वहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है. the 2 is common and यहाँ x की पावर चेक करें तो 2 है and there is the power x power 1. इसका मतलब यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x की पावर 1 भी कॉमन आ रही है और यहाँ पर y की पावर अगेन जो है आपको 1 कॉमन आ रही है, ठीक है. अब इसमें क्या करेंगे आप, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर देखें कि यहाँ अच्छा पहले तो 2 कॉमन ले लें, इसमें से 2 कॉमन आएगा, एक x की पावर 1 कॉमन आएगा और दूसरा y की पावर 1 कॉमन आएगा, ठीक है. देखें x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब विच इज द लीस्ट पावर, पावर 1 इज द लीस्ट, और यहाँ अगर y है फिर y है, ये तो है ही सेम, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा. अब गौर से देखिए 2 1s are 2, हाउ मेनी x 2, हाउ मेनी कॉमन 1, हाउ मेनी लेफ्ट 1, y तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, ये माइनस एज इट इज आएगा. अब ये 1 क्यों आया है कि देखिए यहाँ पर लिखा है 2xy जो कि ऑलरेडी कंप्लीट आप कॉमन ले चुके थे, ठीक है. अभी हम सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, आप कंप्लीट कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा. अगर कभी समझ ना आए तो इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करें और ये आएगा, फिर इस कॉमन नंबर को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिल जाएगा. आप देखें थर्ड और फोर्थ जो टर्म्स हैं, आप चेक करें पहले कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है. 4 इज कॉमन, पहले 4 कॉमन आ रहा है. आप चेक करें यहाँ तो x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इट मीन्स यू कांट टेक कॉमन x बिकॉज एक कॉमन करने के लिए जरूरी है कि उन दोनों टर्म्स में वो नंबर या वो जो वेरिएबल है का प्रेजेंट होना जरूरी है. इसका मतलब x तो कॉमन नहीं ले सकते हम. आप जरा y को चेक करें, यहाँ पर y की पावर क्या है 2 है और यहाँ पर y की पावर क्या है 2 है, इट मीन्स वी कैन टेक कॉमन 4 एंड y स्क्वायर. चेक करें यहाँ पर 4y स्क्वायर कॉमन ले चुके तो यहाँ पर क्या रह जाएगा ओनली x माइनस एज इट इज, और यहाँ पर तो कंप्लीट चीज हम कॉमन ले चुके हैं और जब सब कुछ कॉमन ले चुके तो क्या रह जाएगा ओनली 1, द वे वी हैव डन हियर, क्योंकि 2xy कंप्लीट कॉमन था तो यहाँ पर क्या रह गया 1, ठीक है. अब क्या करेंगे, अब देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, द कंप्लीट ब्रैकेट इज एक्चुअली कॉमन. तो पूरी की पूरी ब्रैकेट में देखें क्या चीज कॉमन आ रही है. अब हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है आपके पास
2x माइनस वन, 2x-1 कॉमन आ रहा है और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या रह जाएगा, x-1 कॉमन है और ये आ जाएगा 2xy प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, वी कैन सॉल्व, इसको बोलते हैं एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन। जो हम थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अगर कुछ और कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन ले लेते हैं। तो चेक करें ये क्या हुआ है। अगर तो सॉल्व होता है क्वेश्चन तो उसे मोर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। द वे लाइक दीज क्वेश्चन वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मोर सिंप्लीफिकेशन, सो वी जस्ट लेफ्ट इट लाइक दैट। लेकिन यहाँ देखें तो यहाँ पर और जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है, चेक करें यहाँ से एक नंबर इस सेकंड ब्रैकेट में चेक करें, एक तो नंबर 2 कॉमन आ रहा है, लाइक 2 1 2 2 2 4, और एक जो सेम और जो कॉमन जो वेरिएबल है दैट इज वाई। और अब दूसरी सवाल ये है कि वाई की कौन सी पावर कॉमन आएगी, सो यू कैन टेक द पावर 1 बिकॉज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1। तो 2y कॉमन है, यहाँ पर क्या रह जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा 2 2 4, और यहाँ पर y की दो पावर्स हैं, एक आपने कॉमन ले ली और एक यहाँ पर रह गई। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन है, जो इसकी एंडिंग है, जिसमें एग्जांपल्स भी दो हमने कवर किए हैं और ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। होप सो आपको समझ आ गई। बट इफ यू रियली वांट टू गेट इट, बट आई मस्ट सजेस्ट यू, इफ यू हैवंट डन 2.7 यू कांट डू 2.8। मतलब 2.7 करना इंतहाई ज़रूरी है। 2.7 के बगैर आप 2.8 कभी भी नहीं कर सकते। तो जस्ट कीप इन वन थिंग इन योर माइंड, फर्स्ट यू हैव टू डू 2.7, देन you have to move towards 2.8. I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye. Okay, so you can see the step, you can arrange it like this.